Hello to everyone. I am Praveen Tripathi welcoming you in the session of physical education. And yes, we have completed our chapter 1, which is about the physical education. I hope that you have understood that chapter very well. Now it's time to start the second chapter, which is about the understanding health. Okay, so in this chapter, we will just explore and learn what is the health. Okay, and we will understand the health and its terminologies and its significances into the detail. So let's start together. Health is commonly understood as a state of absence of disease. This definition of health is focused only on the ability of the body to function. Okay, so health का मीनिंग क्या होता है कि हेल्थ का मीनिंग ये होता है कि एक बॉडी का ऐसा स्टेट जहां पर हमारे को डिसीज नहीं है, ठीक है, कोई हमारे को डिसीज नहीं है, तो दैट मीन वी आर हेल्दी. Okay, so that why it is commonly understood as a state of absence of disease. That means we are not having any kind of disease or the mild disease. This definition of health is focused only on the ability of the body to function, and it also consists that how our body is able to do the work or do the any kind of task. So it is also included in the health that may be disrupted from time टू टाइम बाय डिसीजेस. ठीक है, अब क्या होता है कि जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो टाइम टू टाइम डिसीजेस से अफेक्ट होते हैं. तो इन सभी को कॉमनली हम क्या समझ सकते हैं? हेल्थ. एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा स्टेट जहां पर हमें कोई बीमारी ना हो और हमारा जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं डिसीजेस से. However, this definition of health is partial and covers only the physical aspect. ठीक है, and in this perspective the meaning of health has been changing over a period of time. तो definitions जो है health की वो change होती रही हैं. In 1948, the World Health Organization, means the WHO, defined it comprehensively as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेट जहां पर आप फिजिकल, मेंटल और सोशल अच्छे हैं और केवल केवल यही नहीं कि आपका डिसीजेस नहीं है या कमजोरी नहीं है, जबकि आपके सभी चीजें यानी शरीर के सभी एस्पेक्ट आपके हेल्दी हों, सही हो, स्वस्थ हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कमजोरी है या आपको कोई डिसीज है दैट मीन यू आर unhealthy. It also includes the physical, mental and intellectual emotional part also. Okay, so health is now referred to as a state of physical, mental, intellectual, emotional and social health and well-being. Okay, so it is the ability to adapt एंड मैनेज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चैलेंजेस थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, तो ये क्या एक एबिलिटी है कि हम अडेप्ट करते हैं, मैनेज करते हैं अपने फिजिकल, मेंटल और सोशल चैलेंजेस को. Moreover, it is also the ability of a person to handle stress, acquire skills and maintain positive relationship. That means कि हमें अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है और चलाना पड़ता है. It is widely acknowledged that health is influenced by biological, socio-culture, economic and environmental forces. जी हाँ, हम सभी को पता है कि जो हमारे हेल्थ है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे प्रभावित होता है? हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, सोशियो कल्चर है, इकोनॉमिक है, ठीक है, और फिर एनवायरमेंटल जो फोर्सेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, इन सभी से इफेक्ट होता है हमारा हेल्थ. ओके, access to basic needs like food, safe drinking water supply, housing, sanitation, health services and availability of positive socio-culture, economic and environmental setting influences the health status of a population. Yes, we all know that कि अगर जो भी है हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे कि फूड है, पानी है, हाउसिंग्स है, सैनिटाइजेशंस है, इन सबको अगर हम प्रॉपर रखते हैं तो शायद वो हमारी हेल्थ को बिल्कुल इफेक्ट करता है. ठीक है, तो अगर ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हम हेल्थियर ज्यादा रहते हैं. तो यही सब हमको पता है कि इकोनॉमिकली, एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं, सोशियो कल्चर्स है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो कितना है, तो वो सब हमारे एक एज अ इन्फ्लुएंसर काम करते हैं हेल्थ स्टेटस के लिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस, यानी अब हम देखेंगे कि हेल्थ और उसके डायमेंशंस क्या है, उसके स्कोपिंग्स क्या है. ठीक है, तो हेल्थ इंडिकेट्स अ साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड. ओके, तो हेल्थ का मीनिंग क्या है? एक बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, साउंडेड बॉडी एंड माइंड, एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल. इट नॉट फोकस ऑन जस्ट वन डायरेक्शन dimension. Okay, it focus on the multi dimensions, just like the dimensions being physical, mental, emotional, social, spiritual and environmental. All these dimensions are interrelated with one another. Now let us discuss for physical dimension. Physical dimension refers to the ability of a human body of to function properly. यानी physical dimension का मीनिंग ये हमें पता है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा डायमेंशन जहां पर
ह्यूमन बॉडी की फंक्शंस को देखा जाता है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजेस, हेल्दी हैबिट्स, बैलेंस्ड डाइट, बोन हेल्थ एंड बोन बॉडी मास एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेल्थ की, तो फिजिकल डायमेंशंस में क्या होगा कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आपकी हेल्दी हैबिट्स क्या है, आपका डाइट कैसा है, आपकी बोन हेल्थ कैसी है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स क्या है, तो ये सब किसके अंदर में आते हैं, फिजिकल डायमेंशंस। We can maintain a healthy body by taking proper nutrient, exercising and avoiding harmful habits such as substance abuse, ठीक है। substance abuse क्या होता है कि अगर आप ज्यादा अच्छे से proper nutrient नहीं ले पा रहे हैं, exercising नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ये bad effect पड़ता है, ठीक है। It is better to consume nutritious food and beverages that enhance good health rather than those which impair it। तो ये सब हमें पता है कि हमारे लिए न्यूट्रियस फूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बेवरेजेस हमें खाने चाहिए जो हमारे गुड हेल्थ को एनहांस करे, ना कि उन्हें खराब करे। फिजिकल वेलनेस इज द एबिलिटी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट अलाउज वन टू गेट थ्रू डेली एक्टिविटीज विदाउट अनड्यू फैटी और फिजिकल स्ट्रेस। यानी फिजिकल वेलनेस का मतलब क्या है कि अपने लाइफ की क्वालिटी को इस तरह से मेंटेन करना कि जिससे जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उसको भी हम कर ले बिना थके हुए या ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेते हुए, ठीक है। क्या कई बार क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा बिजी है या हम अपने काम में डेली के जो रूटीन है, डेली एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिजिकल वेलनेस का मतलब यही है कि अपने एक्टिविटीज को हैंडल करते करते आप अपना फिजिक का भी ध्यान रखें। Optimal physical health consists of building physical strength, flexibility, coordinative ability, and endurance while taking safety precautions, including medical self-care and appropriate use of medical system, as well as protecting oneself from injuries and harms। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोला गया है कि ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ वही है कि जहां पर आप अपने हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। आप अपना मेडिकल सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, आप मेडिकल सिस्टम का अच्छे से यूज कर रहे हैं, आप अपने आप को इंजरीज एंड हार्मफुलनेस से बचा रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है, ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ। It involves personal responsibility, disease prevention, and care of minor illness, and also knowing when professional medical attention is needed, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपके जो छोटे मोटे जो बीमारियां हैं वो तो आपको होती नहीं है, और अगर मान लो आपको कुछ बड़ी बीमारी है या फिर प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन आपको पता चल जाती है, अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते रहते हैं, अपने आप को इंजरीज से बचाते रहते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ये तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड सी चीज है ना। Being physically fit and feeling physically well often leads to the psychological benefits of enhanced self-esteem, self-control, determination and a sense of direction। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप एक फिजिकली फिट फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका एक आत्मसम्मान जो है, आप आत्मनिर्भरता है, यानी सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल है, डिटर्मिनेशन यानी आप किसी चीज को बहुत ही डिटरमाइन वे में करते हैं, तो ये सब आपके एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वो, ओके। And next dimension is the mental dimension, okay। So mental health refers to the cognitive aspect of health that includes thinking, reasoning, remembering, imagining and learning words। cognitive का meaning होता है understanding, तो यहाँ पर मतलब है cognitive aspect यानी understanding aspect। mental dimensions का meaning यही हुआ कि जो आपके thinking, reasoning, remembering और imaginations को handle करता है या refer करता है। Cognitive aspect is related to the process of perception, memory, judgment and reasoning। ठीक है। अब मेंटल डायमेंशंस में हम क्या बात करते हैं कि हमारा परसेप्शन क्या है, ठीक है, हमारी मेमोरी पावर कितनी है, हम कैसे किसी चीज पे डिसीजंस ले पाते हैं, हमारा जजमेंट क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेंटल डायमेंशन के अंदर में आता है। It refers to the ability of individuals to use their brain and think, process information and act properly। ठीक है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, आप कैसे उस चीज के बारे में सोचते हैं और कितने बेटर वे में आप सोच पाते हैं, तो ये सब आपके मेंटल डायमेंशंस को ही रेफर करती है। It is our capacity to master new skills, embrace humor and क्रिएटिविटी, ठीक है। ये हमारी क्वालिटीज होती है ह्यूमन की कि हम नए नए स्किल्स भी सीख लेते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर कोई ना कोई एक्टिविटीज या क्रिएटिविटीज भी होती है। A sound mental health plays an important role in shaping our daily activities।
ठीक है। तो एक अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटल हेल्थ रखेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, तो हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज है, जो हमारी डेली रूटीन है, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली होती है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। इफ वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, देन वी कैन परफॉर्म बेटर। ओके, एंड इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स इन मेकिंग अ कंप्लीट पर्सन। Okay, person can be only said complete if he or she is mentally healthy as well as the physically healthy. To stimulate our mental health, we can engage in various activities. अगर हमें अपने mental health को बढ़ाना है, अच्छे से करना है, maintain रखना है, तो हम बहुत सारी activities में participate कर सकते हैं, जैसे कि questioning critically, involving ourselves in creative एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई अच्छे से नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जहां पर आपका माइंड लग रहा हो, जहां पर आपकी रीजनिंग, जजमेंट, परसेप्शंस यूज हो रहे हैं, तो वहां से आप अपने मेंटल डायमेंशंस को और एनहांस कर सकते हैं। Mental health leads to an increase in self-esteem and thereby leads to confidence in social situations. Yes, if we are mentally healthy, then we feel that we are good enough to present ourselves in the social situation. A sound mental health depends primarily on increased physical activities. Engaging in games and sports regularly keeps us mentally active. Yes, it is very well understood कि अगर हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हैं तो हमारा मेंटल एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजाइज करते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं, प्लॉटिंग्स करते हैं। जहां पर आपको एक जीत की तरफ जाना होता है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं मेंटल एक्टिविटीज को ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। सो हाउ कैन वी हैव गुड मेंटल हेल्थ? अब ये है क्वेश्चन कि आखिर हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इजी, ईट हेल्दी फूड। ठीक है, देयर आर स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन व्हाट वी ईट एंड हाउ वी फील। अगर हम अच्छा खाते हैं तो जरूर हमें अच्छा महसूस होता है और हमारा पूरा दिन अच्छा रहता है। ठीक है, अ हेल्दी डाइट इज वन दैट हैज enough essential nutrients that provide right amount of calories to maintain a healthy weight. अगर हम अच्छा खाएंगे, हेल्दी डाइट हमारा होगा, तो और हमारे पास एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड बहुत ही स्ट्रेस लेस रहेगा। ठीक है ना, विदाउट स्ट्रेस। एक्सप्रेस योर फीलिंग। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर वी आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, whenever we are feeling depressed, okay, then talking about our feelings help us to stay in good mental health. It is scientifically proven. Okay, अगर आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो आपको बातें करनी चाहिए, आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूर उसको यूज करना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन be a good mental health. Okay, there are some more aspects, so let's explore it. Play games and sports you like. आपको जो गेम्स पसंद हैं, जो स्पोर्ट्स पसंद है, आप उनको खेले तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा बना रहेगा। What do you love to play? Playing hockey, cricket, chess or any other game, or doing an activity you enjoy or you are good at. Boost your self-esteem. It helps you to concentrate, sleep, look and feel better. Okay, if you are playing any kind of game, then it will increase you to the sleeping power, the concentration power and etc. Okay, enjoying through games helps in beating stress also. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि गेम्स खेलने से आप अपने स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं। गेट इनफ स्लीप। आप टाइम से सोइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज हम बात करें यंगस्टर्स की, तो हम बहुत ही लेट सोते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गेमिंग में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस में काफी इतने ज्यादा इंगेज रहते हैं कि हम अपने प्रॉपर स्लीपिंग को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छा खाइए और साथ के साथ आप इनफ सोइए भी। 8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। Every day, our body needs time to rest and heal. Sleep for about 8 hours is must for all, especially for children. जैसा कि आप लोग जिस एज में है, आप लोगों के लिए 8 घंटे की नींद तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई का भी स्ट्रेस लेते हैं, रात रात भर जागते हैं, तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप 8 घंटे रोज जरूर सो रहे हैं। ओके, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। यस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे तो आप मेंटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्ट्रांग होंगे, वेलबींग अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल और पीसी से हम अपने आप को मेंटली फ्री नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा, और फीलिंग आप एक्सप्रेस करेंगे अपने फ्रेंड्स से, उनसे मिलके, ना केवल सोशल मीडिया पे। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन मेक यू फील केयर फॉर। ओके, वो आपको ये याद दिलाते हैं या महसूस करवाते हैं कि हाँ, आपकी भी वैल्यू है, आपको माना जाता है, आपको प्यार किया जाता है, आपकी देखभाल की जाती है।
they can offer different views to your problem and the tension you are feeling. आपकी जो भी कोई टेंशन हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, उनके एक अलग ही व्यू होते हैं, अलग ही पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, जहां से वो आपको उस मुसीबत से, उस स्ट्रेस से फ्री कर सकते हैं. This helps in better understanding of the problem or situation and thus in solving the problems. Next is ask for help. You must ask for help if you are feeling stressful or depressed or you are in any kind of problem. Okay, none of us imperfect in all aspects. We all know that. We all have problems when things go wrong or get tired at times. ठीक है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं. ठीक है, तो उनसे निपटने के लिए आप अपने आप को या किसी से भी आपको हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप अपना जो मेंटली जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकें. ठीक है, if you feel that you cannot cope up with the situation and things are getting too much, then do not hesitate to ask for help. Hesitate मत कीजिए. अगर आपको लगता है कि आप अब नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपको हेल्प लेनी चाहिए या लेनी पड़ती है. Do not consume tobacco products or alcohol. ठीक है, ये यंगस्टर के साथ बहुत होता है कि अगर आप माइंड को अच्छे से फ्री रखना चाहते हैं तो प्लीज टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज मत करें और ना ही अल्कोहल प्रोडक्ट्स का यूज करें. ओके, अब हमने बात कर ली है अभी तक फिजिकल डायमेंशन की और मेंटल डायमेंशन की. अब बारी है सोशल डायमेंशन के बारे में बात करने की. This dimension of health refers to the ability of individuals to interact with others in the socio-culture environment. ठीक है, तो ये हेल्थ का डायमेंशन क्या कहता है कि आप एज अ इंडिविजुअल कैसे हैं और आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि जब भी आप एक सोशो कल्चर एनवायरनमेंट में रहते हैं. अ साउंड सोशल हेल्थ हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स. ठीक है, अगर आपका सोशल हेल्थ, अब सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे रखते हैं, आप अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं सोसाइटी में, उसके ऊपर ये रिफर करता है. ठीक है, good social health includes not only having positive relationship but behaving appropriately. ठीक है, बिहेवियर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मेंटेनिंग सोशल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स. आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स अपने बनाइए कि आप सोशली एक्सेप्टेबल हो. ऐसा नहीं कि बस आपको देख के लोग पीछे से बुराइयां करें कि ओहो ये कौन है. ठीक है, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विद फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, पियर्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स. जो भी हमारे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं जैसे कि फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स वगैरह, ये सभी के साथ अपने एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे से रखना, उनके लिए एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना ये आपके लिए बहुत कंपलसरी होता है. तो ये आपका सोशल डायमेंशन के अंडर में आता है. गुड कम्युनिकेशन स्किल हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग साउंड रिलेशनशिप. सबसे बड़ी बात होती है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपका जो सोशल डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता ही होता है. अगर आप किसी बड़ों के आप नमस्ते कर रहे हैं, उनसे हाल चाल उनका पूछ रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, या आप एक बहुत ही मिठास से बोलते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है. ठीक है, एम्पैथी रखना. These relationship impact a person's life the most. Yes, it impacts our life. Okay, social health also affects the other dimensions of health in many ways. A bad social life many a times lead individuals to question their purpose in life or feel isolated and unwanted. ठीक है, आइसोलेटेड हो जाते हैं हम. अगर हमारा सोशल लाइफ बैड है, इम्पैक्टफुल नहीं है, तो हम अपने आप को अकेला पाएंगे और हम अपनी फीलिंग्स भी नहीं शेयर कर पाएंगे और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन ही होगा. तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल डायमेंशंस की. ठीक है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ. Emotional dimension of health is another important ability to cope, adjust and adapt to our environment. ठीक है, इमोशनल डायमेंशंस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. People with positive mindset tend to be more successful. ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर बात की गई है जो कि आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. हमारा हर एक चीज में पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए. ठीक है, it is a commonly used statement that individuals become the type of person like the friends they have. ठीक है ना, हमारे भी तो कहावते हैं ना कि संगति का असर होता है या जो भी है ना. तो यही बात है कि आपका इंडिविजुअलिटी वहीं से रिफर करती है कि आपके किस टाइप के फ्रेंड्स हैं. अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो दैट मीन कि हाँ आप कहीं ना कहीं एक गुड बुक्स में हैं. अगर आपके थोड़े से अलग किस्म के फ्रेंड्स हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अलग किस्म के ही माने जाते हैं. It means that the friend and other people who live together in the immediate environment play a very important role in personality development and emotional wellness. ठीक है,
आप जिन किसी के साथ रहते हैं, आप जिन फ्रेंड्स के साथ या किस लोगों के साथ रहते हैं, वो कहीं न कहीं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। लोग आपको उसी हिसाब से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है? सम ऑफ द टेक्निक्स व्हिच हेल्प इन हैविंग स्टेबल इमोशनल हेल्थ इंक्लूड। आप ये बता रहे हैं कि अपना इमोशनल हेल्थ आप कैसे स्टेबल रख सकते हो, कैसे अच्छा रख सकते हो? रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, ओके? आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए। अगर आप अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप उसके लिए मोटिवेटेड रहते हैं और फिर जो आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ के, आप कहीं ना कहीं उसको हटाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपका एक गोल सेट रहता है। लर्निंग हाउ टू डील विद सेटबैक्स। आपको मान लो अगर आपको कोई सेटबैक हुआ है, कुछ निराशाएं हुई हैं, कुछ आपके लाइफ में कुछ घटित हुआ है, तो आप उससे डील करना सीखते हैं, चीज सीखिए, ठीक है? और कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आप अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखिए। एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज होप, एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने आप में जोश रखिए, उत्साह रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और कहीं ना कहीं आशावादी रहिए, होपफुल रहिए, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल डायमेंशंस को रिफर करेंगे और आपकी इमोशनल हेल्थ को भी अच्छे से बनाए रखेंगे। अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन की। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होगा? स्पिरिचुअल डायमेंशन कहीं ना कहीं हम जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होती है, वो उनसे थोड़ा सा ऊपर होता है। जैसे कि हम अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, नेल्सन मंडेला की, या गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक्सप्लोर किया और उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बिलीव्स को अपने तक काबू रखा, ठीक है? तो देयर आर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है? हमारा जो स्पिरिचुअल बिलीव है वो कहीं ना कहीं डिफर करता है हर जगह। The spiritual beliefs will help the individuals discover and pursue their own value and beliefs and a sense of overall purpose in life, ठीक है? तो स्पिरिचुअल बिलीफ जो है, हमारी जो आंतरिक बिलीफ है, जो हमारे अंदर की जो चीज होती है, जो हमारा मानना होता है, कहीं ना कहीं एक हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा भी कुछ भ्रम होती है, मान्यताएं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअलिटीज पे रिफर करती है, ठीक है? Generally, people often find their purpose from a belief or faith system, while other create their own school of worship. ठीक है? कई बार तो हम ना हमारे एक पर्टिकुलर जो फॉलो हो रहा है उसी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, लेकिन कई जो होते हैं वो खुद का एक स्कूल ऑफ वर्शिप बनाते हैं, यानी खुद का एक माइंडसेट बनाते हैं, खुद का एक स्पिरिचुअल बिलीफ क्रिएट करते हैं। A person who has a purpose in life is said to be healthier than those who do not have it. I think ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस है, वो ज्यादा हेल्थियर रहेगा, जबकि जिनके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई सेट ऑफ एरिया नहीं है जहां पर वो वर्क करना चाहते हैं, दैट मीन दे आर अनहेल्दी, ओके? और वो सबसे ज्यादा पीड़ित रहते हैं। Spiritual health easily affects emotional and mental health, as having a purpose in life can help you to apply yourself to achieving goals, ठीक है? स्पिरिचुअल हेल्थ आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपका गोल नहीं होगा, आपका स्पिरिचुअल कुछ भी सेट ऑफ माइंड नहीं होगा, तो वो आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे तो इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है? हैविंग अ पर्पस इन लाइफ कैन आल्सो हेल्प पीपल टू मेंटेन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड ओवरकम एडवर्सिटी, ठीक है? आप डिफिकल्टीज से, एडवर्सिटी मींस डिफिकल्टीज से भी आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका एक गोल है, एक सेट ऑफ स्टेबल माइंडसेट है, तो आप अपने आप को एक बेटर परफॉर्मर मानते हैं, ठीक है? Often people who are spiritual meet together regularly around their spiritual purpose, which helps to improve their social health also. So this is how we have completed our spiritual dimension. Now it's time to understand what are the environmental dimensions. Okay, environmental health inspires us to live a lifestyle that is beneficial for our surroundings. Environmental health क्या होगी? Environmental health वो होगी कि हमारा lifestyle क्या है, हम किस तरह से जीते हैं, ठीक है? It encourages us to live in harmony with the nature by taking action to protect it. हार्मनी का मीनिंग होता है कि आप बैलेंस कैसे बना के रखते हैं अपने आप को, ठीक है? आप अपने लाइफ में और नेचर में कैसे बैलेंस बना के रखते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज ना करिए जिससे कि आप एनवायरनमेंट को मतलब हार्म कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी हार्मफुल होगा। Our environment consists of external and internal factors. Our surroundings, such as our habitat, occupation, pollution level at the place where we live and work, constitute our external एनवायरमेंट, ठीक है? तो जो भी हैबिटेट है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपके जो आसपास का इलाका है, आपका अगर पॉल्यूशन लेवल है, तो आप कहीं ना कहीं एक इरिटेटेड फील करते हैं। अगर आप इरिटेटेड फील करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तो गया वहीं पर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है।
The internal environment refers to an individual's internal structure in the form of genetic composition. ठीक है, इंटरनल फैक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं, आपका अंदर का मतलब स्ट्रक्चर क्या है, which is very crucial in determining the health and wellness of human beings. Other environmental factor which include our family. Environmental factor में हमारी फैमिली भी आएंगी, हमारे environment क्या मिलता है हमें, क्या हमें पढ़ने के लिए सही समय मिल पाता है, क्या वो माहौल मिल पाता है जो हमें चाहिए, क्या एक डिसिप्लिन हमें मिल पाता है ना, फ्रेंड्स, नेबरहुड, कम्युनिटी, हैबिटेट, ऑल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. ठीक है, तो ये सब बिल्कुल हमारे हेल्थ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं. द को प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल वेलनेस इज रिस्पेक्ट फॉर नेचर. ठीक है, अगर आप एनवायरमेंटल वेलनेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नेचर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. आप नेचर को रिस्पेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं आप पर वो रिफ्लेक्ट करेगा. एंड ऑल स्पीसीज लिविंग इन इट. एनवायरमेंटल वेलनेस डज नॉट मैंडेट यू टू जॉइन अ मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जोड़ते हैं या आप किसी मूवमेंट का हिस्सा होते हैं तभी आप एनवायरमेंटल के लिए अच्छा सोच सकते हैं. अगर आप अपने आप में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करेगा और वो एनवायरमेंटल वेलनेस को भी एनकरेज करेगा. But it does encourage you to practice habits that promote a healthy environment. Okay, and when you become environmentally healthy and aware, you will be able to realize how your daily habits affect the environment. अगर वो कहते हैं ना कि बदलाव लाने के लिए सभी को बदलना जरूरी नहीं है, आप अगर अपने आप को बदल लेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं बदलाव ला सकते हैं. Improving environmental wellness is simple and results in a more balanced lifestyle. अगर आप environmental wellness feel करते हैं तो ये बहुत ही simple है और इसका result भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है. तो students, we have covered the various kind of dimensions of health. So I hope that you have understood in very much clear manner. So other portion of the chapter we will do in the next meeting. So take care. Bye bye.